Good morning, students. Today we will study about NGP. The full form of NGP is neighboring group participation, and it is also called as enchimeric assistance. In the neighboring group participation, as the name indicates, there is a neighboring group which participate, and here two SN2 substitutions takes place. In the step 1, attack of internal nucleophile takes place, and in the step 2, substitution of external nucleophile takes place. As we can see here in this example, this is G, this is internal nucleophile which contains some lone pair. Okay, this attack on the carbon which is at adjustable distance or at minimum distance from the neighboring group, and then the leaving group will leave. L is a leaving group and it leave in this reaction. After this leaving group has left, then external nucleophile will came. It will attack at the same carbon from where the leaving group has left, and this bond will go back, and we will get the product with the retention of configuration, as you can see here in the reactant and in the product. There is almost similar configuration. So geometry is retained in this case. So the result of two substitution is the net result of retention of configuration. So here in this molecule, configuration is retained. We can write it here also, retention of configuration. Retention of configuration. I hope you understand this. Okay. So to sum up this, let's understand once more. When a molecule that can react by nucleophilic substitution also contains a substituent group that can act as a nucleophile, and it is observed that the rate and stereochemistry of the nucleophilic substitution are strongly affected. ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस हो रही हैं और सब्स्टिट्यूएंट उसके अंदर पड़ा हुआ होता है जो नेबरिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, उस केस में जो रेट है रिएक्शन का और स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो स्ट्रांगली अफेक्ट होती है. ओके, एंड क्यों अफेक्ट होती है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नियर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट substitution process, then it is called as NGP. इन्वॉल्वमेंट ऑफ नियर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, एज आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, वो मॉलिक्यूल में बहुत नियर बाय डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, एट फेवरेबल डिस्टेंस पड़ा हुआ है. तो उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, रादर 1000 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है. तो जहाँ भी रेट एनहांसमेंट हो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, देन आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे नेबरिंग ग्रुप इन्वॉल्व है. एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, ये नेबरिंग ग्रुप पड़ा हुआ था, इसने कार्बन पे अटैक किया, अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करवाया, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट दिस इज़ कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यूजुअली कैसे होती है? इट अकर्स वाया 2 consecutive SN2 processes with overall retention of configuration. And number 2, यहाँ पे rate of reaction is also enhanced more than the expected one. Increase हो जाता है rate of reaction. ठीक है, क्यों increase होता है? Again because of involvement of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट, जो उसके नियर बाय पड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल के अंदर ही पड़ा हुआ है और अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या होगा इन नटशेल इस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए? लेट्स सी. तो रिक्वायरमेंट इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल should have a second functional group with a pair of electron to offer. तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एक सेकेंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए
जिसके पास लोन पेयर हो ऑफर करने के लिए। अगर लोन पेयर ही नहीं होगा तो वो डोनेट क्या करेगा, ठीक है। तो देयर शुड बी अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन द सेकेंड रिक्वायरमेंट है द सबस्ट्रेट शुड हैव एट अ फेवरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द कार्बन अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो सबस्ट्रेट है उसको फेवरेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो भी एनजीपी नहीं होगी, ठीक है। तो इन नट शेल हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को देखते हैं एक बारी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या क्या होता है। नंबर 1, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज कर जाता है, मोर समटाइम्स 1000 टाइम इंक्रीज कर जाता है, ओके। एंड और क्या होना चाहिए एनजीपी में, जो नेबरिंग ग्रुप है वो बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है, गामा पे हो सकता है, डेल्टा पोजीशन पे एलिमेंट की हो सकता है। जितना दूर होता जाएगा उतना ही नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन जो है वो लेस होती जाएगी, ठीक है। जितना नज़दीक प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। एंड यूजुअली 1000 टाइम रेट उसका इंक्रीज़ हो जाता है रेट का, ठीक है। और इन केस ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स reaction is only feasible when there is 3, 4, 5 membered ring present होती है। और जितनी रिंग स्मॉलर होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है रिंग के अंदर, राइट। एंड रिएक्शन कैसे होता है एनजीपी में, विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ होता है। सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। These are some important points. In nutshell, this is all about the NGP. Now, कंडीशंस हम ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं। सो लेट्स सी कि नेबरिंग ग्रुप में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। द टाइप ऑफ ग्रुप्स बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट एंड शो द expected to show the neighboring group participation. So any group which has lone pair हो, 2 ऑफर या पाई इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल के अंदर, ओनली देन वो हमारा शो करेगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को। अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के आउटकम्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 आउटकम्स ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नंबर 1 है हमारे पास एनकैमेरिक इफेक्ट, नंबर 2 रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है और नंबर 3 साइन सब्स्टिट्यूशन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनकैमेरिक इफेक्ट को, जिसको हम एनकैमेरिक असिस्टेंस भी पहले कह चुके हैं, ओके। द न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट, हमने जी से भी दिखाया है, ए से भी दिखा सकते हैं। सिंस द न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल एंड एट ए फेवरेबल पोजीशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अब्रप्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस एनहांसमेंट ऑफ रेट बाय द नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप क्या हो सकता है, लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इज कॉल्ड द एनकैमेरिक इफेक्ट और एनकैमेरिक असिस्टेंस, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल करते हैं हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के। सबसे पहले करते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय लोन पेयर्स, ओके। तो ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दिस इज रिएक्टेंट नंबर 1, ये मस्टर्ड गैस है। लुक एट दिस, इसमें सल्फ़र प्रेजेंट है, सल्फ़र के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। सल्फ़र अपना लोन पेयर डोनेट करता है इस CH2 को, और देखो एक फेवरेबल डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से इसको अप्रोच कर सकता है। और ये लीविंग ग्रुप हमारा क्लोराइड टू क्लोरीन है, ये लीव कर जाएगा यहाँ से। एंड दिस काइंड ऑफ साइक्लिक सल्फोनियम आयन बनता है, क्लोराइड आयन बाहर निकल गया है। देन अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या है, एन एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉल्वोलिसिस करते हैं वाटर के साथ। तो वाटर में से OH नेगेटिव आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक अटैक ऑन द सेम कार्बन जहाँ से लीविंग ग्रुप लीव किया था, ओके। और अगेन दिस मॉलिक्यूल इज बीइंग फॉर्म्ड, क्लोरीन की जगह यहाँ पे अब एक OH आ गया। दिस इज अवर प्रोडक्ट, okay, you can see this again. So here is again the retention of configuration. Second example ले रहे हैं हम।
neighboring group participation of carboxylate anion in the conversion of 2-bromo-propanoate anion into lactate anion. Let's understand this. Let's draw the molecule. First, this is anion, carboxylate anion. This is 2-bromo-propanoate anion. देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 2 लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे 3 लोन पेयर है. ऑक्सीजन डोनेट करेगा टू द नेबरिंग कार्बन, जो कार्बन पड़ा हुआ है, और ब्रोमाइड आयन क्योंकि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये आराम से यहाँ से लीव कर जाएगा. इट विल लीव फ्रॉम दिस प्लेस. As you can see there, this is intermediate formed. This is alpha lactone. Alpha lactone is an intermediate after the first substitution, first step. Now an external nucleophile will came. It will attack at the same carbon from where the bromide ion is left, and now it will convert into lactate anion. As you can see there, this bond will break. जिससे इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन की थी वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट डाउन टू द ऑक्सीजन एटम, एंड ये हमारा लैक्टेट एनायन फॉर्म हो गया. As you can see in the product, the geometry is retained, the configuration is retained. So this is lactate anion with retention of configuration. Rate is also enhanced because of NGP. It shows the presence of neighboring group participation. Okay, I hope you understand this. So let's move on to another example. Example number 3. Properly situated halogen atom. Okay, this is example number 3. Properly situated halogen atom also undergo encameric assistance. Let's draw the example first. And this is a chair form of cyclohexane. In this, there is halogen is iodine, and brosylate group is attached over here. It is trans 2-iodobrosylate. Cyclohexyl brosylate. As you can see, आयोडीन और जो ब्रोसाइलेट ग्रुप है ये बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पड़े हुए हैं, ट्रांस पड़े हुए हैं. और इस तरह के रिएक्शंस के लिए, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में दोनों जो ग्रुप हैं वो ऑपोजिट टू ईच अदर होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन होनी चाहिए. ओनली देन दे कैन टेक प्लेस. तो आयोडीन के पास लोन पेयर पड़े हुए होते हैं, जो ब्रोसाइलेट है वो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, हैवी ग्रुप होता है, तो इजीली लीव कर जाता है. तो आयोडीन से एक
लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया कार्बन पे कंटेनिंग द ऑब्रोसाइलेट ग्रुप, और ये लीविंग ग्रुप बहुत अच्छे से लीव कर जाएगा। सो दिस ग्रुप विल बी रिमूव्ड और यहाँ पे इपोक्साइड बन जाता है हमारा। इंटरमीडिएट बन गया, आयोडीन इज कॉमन बिटवीन द टू, एक इंटरमीडिएट है हमारा। देन इसकी एसिटोलिसिस करेंगे एसिटिक एसिड के साथ, उसमें से एसिटॉक्सी ग्रुप विल केम ओवर हेयर, वो वहीं पे अटैक करेगा जहाँ से प्रोसाइलेट ग्रुप ने लीव किया था, एंड यू कैन सी दैट आयोडीन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एसिटॉक्सी ग्रुप OAC और यहाँ पे आयोडीन आ गया। ठीक है, अगेन हमें जो प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया था ऑलमोस्ट वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी दैट अगर हेलोजन एटम प्रॉपर्ली सिचुएटेड हो तो इट कैन ऑल्सो ऑफर द एंकामेरिक असिस्टेंस। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हमारे पास प्रॉपर्ली सिचुएटेड ग्रुप्स ना हो, दैट मीन्स जो ब्रोसाइलेट ग्रुप है वो हमारे पास सिस फॉर्म में ये आयोडीन और जो ग्रुप है ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, देन इन दैट केस सब्स्टिट्यूशन तो होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होती है, बट इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक एक्सियल पोजीशन में है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन में है, सो इट इज़ नॉट द गुड पोजीशन। सो हेयर नो NGP विल टेक प्लेस, सब्स्टिट्यूशन होगी, आई रिपीट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जैसे कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन होती है, बट NGP नहीं होगा। तो फेवरेबल पोजीशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि जो ग्रुप है वो एक फेवरेबल पोजीशन पे होना चाहिए जिससे वो आराम से पार्टिसिपेट कर सके, इन्वॉल्व हो सके NGP के अंदर। Okay, I hope you understand this. Let's move on to the another example. Okay. So next example is example number 4. It is a formation of epoxide from beta chlorohydrin in the presence of a base. ठीक है, so let's take an example of trans 2-chlorocyclohexanol. यहाँ पे भी OH और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से एंटी हैं, दे आर ट्रांसफॉर्म एंटी टू ईच अदर, दोनों एक्सियल हैं, और OH ऑफर करेगा अपने लोन पेयर इन द पार्टिसिपेशन, क्लोराइड आयन विल लीव, ये इपोक्साइड बन जाएगा, then the external nucleophile will came, right, but अगर क्लोरीन और OH सिस पोजीशन में प्रेजेंट होते, अगर ये सिस पोजीशन में प्रेजेंट होते तो NGP वुड नॉट बी पॉसिबल, एनायन तो बनता, सब्स्टिट्यूशन भी होती नॉर्मली, लेकिन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, ओके, तो इस तरह के एग्जांपल्स में पोजीशन